હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ ત્રીજો નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ. બે યુદ્ધો વચ્ચેના વૈશ્વિક પ્રવાહો છે તે આપણે જોયા. જેમાં આપણે જોયું ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ. મુસોલિનીએ ઇટાલીમાં ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કરી અને ત્યાર પછી તેણે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જે કંઈ ગુમાવ્યું હતું તે બધું જ પરત મેળવવા માટે ત્યાંના લોકોને લશ્કરી તાલીમ આપી. લશ્કરી તાલીમ આપીને કાળા રંગનો ગણવેશ છે તે લોકોને પહેરાવ્યો અને વિસ્તારવાદની નીતિ છે તેણે અપનાવી અને યુરોપના કેટલાય દેશો ઉપર પોતે છે તે કબજો મેળવ્યો. આ તરફ જર્મની પણ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જીત મેળવ્યા છતાં તેના હાથે કંઈ ન લાગ્યું હોવાથી ત્યાં પણ અસંતોષ છે તે જોવા મળતો હતો અને ત્યાં નાઝીવાદની સ્થાપના એટલે કે નાઝી પક્ષની સ્થાપના છે તે કરવામાં આવી અને એડોલ્ફ હિટલર દ્વારા છે તે આ પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને તેનો પણ એક અને એકમાત્ર હેતુ હતો કે જર્મન લોકો જ્યાં જ્યાં વસવાટ કરે છે તે વિસ્તારોની ઉપર પોતે છે તે પોતાનું આધિપત્ય જમાવે અને તે વિસ્તારોને જર્મની સાથે જોડી દેવામાં આવે. ત્રીજો પક્ષ હતો જાપાનમાં લશ્કરવાદ. જાપાનની અંદર એ સમયગાળા દરમિયાન ચૂંટણીનો માહોલ હતો અને ચૂંટણીમાં એવા પક્ષોની જીત થઈ હતી કે જે પક્ષો લશ્કરવાદને મહત્ત્વ આપતા હોય અને આ પ્રમાણે જાપાનની અંદર લશ્કરવાદને મહત્ત્વ મળે તેવા પક્ષોની જીત થવાથી ત્યાંના લોકોને પણ લશ્કરી તાલીમ છે તે આપવામાં આવી અને બીજી તરફ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક મહામંદી છે તે જોવા મળતી હતી. બધા જ દેશો આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ ચૂક્યા હતા. બીજી બાજુ જાપાન, જર્મની અને ઇટાલી ત્રણેય વિસ્તાર વધારવા માટે છૂટો દોર છે તે અપનાવી લીધો હતો. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ છે તેના માટેના પરિબળો આપણે જોયા હતા, જેમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદની ભાવના કે લોકોની અંદર પોતાના દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હતી ને પોતાના દેશનો વિસ્તાર વધારવાની ભાવના હતી. જૂથબંધીઓ ઇટાલી, જર્મની, રશિયા, ઇંગ્લેન્ડ આ બધાએ એકબીજા રાષ્ટ્રોની સાથે જૂથબંધી કરીને કેટલાય વિસ્તારો ઉપર પોતાનો કબજો છે તે જમાવ્યો હતો. લશ્કરવાદ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની જે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી યુનાઇટેડ નેશન્સ, તે નિષ્ફળ ગયું વિશ્વ શાંતિ સ્થાપવામાં. વર્સેલ્સની સંધિ, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે જે વર્સેલ્સની સંધિ થઈ હતી, આ પેરિસ ખાતે યોજાયેલી શાંતિ પ્રક્રિયાની અંદર વર્સેલ્સની સંધિમાં એ સંધિને કોઈ ગણકારી નહીં કોઈ પણ રાષ્ટ્રે અને કેટલાક રાષ્ટ્રો છે તેમાં નિષ્ફળ ગયા એટલે કે તેની સાથે જોડાઈને પણ તેને સ્વીકારતા ન હતા. બીજું, એડોલ્ફ હિટલરની સામ્રાજ્યવાદી મહત્વકાંક્ષા અને જર્મનીનું પોલેન્ડ પર આક્રમણ તે તાત્કાલિક પરિબળ હતું બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધના મૂળ છે તે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં છુપાયેલા હતા. આપણે એની એક એનિમેટેડ મૂવી જોઈએ તો તમને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની ઘટના છે તે વધારે સારી રીતે સમજાશે અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ તરફથી પછી આપણે બીજું વિશ્વયુદ્ધ છે તેનું પણ મૂવી છે તે જોવાના છીએ. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની ઘટના वन के बारे में. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. वर्ल्ड वॉर वन को द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या ग्लोबल वॉर आदि नामों से जाना जाता है. ऐसा माना जाता था कि ये लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और अगले 60 से 70 वर्षों तक कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा. किंतु इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर वन रख दिया गया. वर्ल्ड वॉर इसलिए क्योंकि इसमें दुनिया के कई देश आपस में लड़े और कई जाने गए. ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला. अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि इस विश्व युद्ध में लड़ी थी. ये युद्ध दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, जिनमें से एक था अलाइड पावर्स, इसके सदस्य थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए, और दूसरी ओर था सेंट्रल पावर्स. इस ग्रुप के सदस्य थे जर्मनी, ऑटमन एम्पायर जहां आज टर्की स्थित है, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जहां आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. इससे पहले हम बात करें इनके कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में, हम बात करेंगे मुख्य अलाइंसेस यानी संधियों के बारे में, जो कि आपको बाद में समझने के लिए हेल्प करेंगी. अपनी पावर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ
गुप्त समझौते कर लिए। किसी दूसरे देश को इस बात का पता नहीं था कि इन देशों के बीच में अलायंसेस यानी समझौते हैं। इनमें से मुख्य समझौते हैं नंबर 1 ट्रिपल अलायंस। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में 1882 ईस्वी में हुआ था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इनमें से किसी एक पर हमला करता है तो तीनों मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2 ट्रिपल एंटॉन्ट। ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। पहले 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस का एक समझौता हुआ जिसे एंटॉन्ट कोर्डियाल कहते हैं, और 1907 में जब रशिया का समझौता इनसे हुआ तो ये ट्रिपल एंटॉन्ट बन गया। बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में, तो सबसे पहले पर है अलायंसेस यानी संधियां। हम अभी अभी इनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके कारण भी कई देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया। नंबर 2 पर है मिलिट्रिज्म। हर देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टैंक, मशीन गन्स और बड़ी और अधिक शक्तिशाली सेना व जहाज बनाने की दौड़ में लगे थे। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। इसी दौड़ में अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और ये वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बना। नंबर 3 पर है इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। साधारण शब्दों में कहें तो उस समय के पश्चिमी यूरोप के देश चाहते थे कि वह दूसरे देशों पर अपना राज करके अपनी मैन पावर यानी आर्मी और सभी रिसोर्सेज को बढ़ाए। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे था, जिसने भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। एक समय में तो ब्रिटेन 25% दुनिया पर अपना राज कर चुका था। इसमें सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि ये एरिया में काफ़ी बड़ा था। डेथ ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914। इस घटना का वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा संबंध है। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे और बाद में राजा बनने वाले थे। एक बार ये ऑस्ट्रिया हंगरी के साराजेवो नाम के शहर में एक टूर पर आए थे। साराजेवो शहर अब बोस्निया में है। यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रिंस की मौत के बाद लोग भड़क उठे और सर्बिया को धमकी देने लगे, क्योंकि सर्बिया बोस्निया के पास का एक देश है जहाँ के अधिकारियों ने बोस्निया के प्रिंस को मरवाकर बोस्निया को आज़ाद करवाने की साजिश रची थी। जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बिना युद्ध किए सर्बिया को अपने हवाले होने के लिए कहा। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों देशों में स्लाविक लोग रहते थे और रशिया पहले से ही इस बात में इंटरफेयर करना चाहता था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों में 1882 ईस्वी में एक संधि हुई थी, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही शुरुआत में बात कर चुके हैं। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं क्योंकि ये सब 28 जून को प्रिंस की मौत के बाद जुलाई महीने में हुआ था। वॉर डिक्लेयर्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसके बाद रशिया ने जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि रशिया और फ्रांस ने भी एक संधि की थी जो थी ट्रिपल एंटॉन्ट। अगर आपको याद हो तो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। पर इटली, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ एक संधि में बंधा हुआ था, उसने ये कहकर अपना दल बदल लिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हुआ था, ना कि अटैक करने के लिए। और युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों से ही ट्रिपल एंटॉन्ट की ओर से लड़ना शुरू कर दिया। अब जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि रशिया की आर्मी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे और वे फ्रांस को पहले रास्ते से हटाना चाहते थे, बाद में वे रशिया पर अटैक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रूट चुना और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के रास्ते घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी 1939 में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन को की रक्षा करनी थी। इसलिए
अब ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद करने के लिए भेज दिया। जर्मनी फ्रांस में घुसने में तो सफल हुआ, लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया। और दूसरी ओर ईस्ट में जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सैनिकों को मारकर उसे पछाड़ दिया। उसके बाद ऑटमन एम्पायर ने रशिया पर 29 अक्टूबर 1914 में अटैक किया। क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसका दूसरा कारण ये भी है कि रशिया जिस समुद्री रूट से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो ऑटमन एम्पायर के पास डार्डेनल स्टेट्स की ओर से जाता था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये रूट रशिया का मेन ट्रेड रूट है। तो रशिया चाहता था कि ऑटमन एम्पायर उसके रास्ते में कोई बाधा ना डाले, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतरे। उसके बाद ऑटमन एम्पायर ने स्यूज कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया जोड़ने वाली ये एक मुख्य कड़ी थी। हालांकि बाद में इसे बचा लिया गया। लगभग 3 साल तक न जर्मनी आगे बढ़ा न फ्रांस। उस समय लड़ाई ट्रेंचेस में होती थी। ये ज़मीन के अंदर निकाली गई नालियों जैसी जगहें होती हैं जहां सैनिक गोलियां चलाते हैं, और ये डिफेंस में भी काफ़ी काम आती है। सैनिक अपना बहुत सारा समय यहीं पर गुजारते थे। बैटल ऑफ सोम ये 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला। इसमें अलाइड पावर्स के एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर ब्रिटेन के थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज पर हमला कर दिया। जापान युद्ध में ब्रिटेन और उसके बीच हुई एक संधि के कारण कूद पड़ा। ब्लैक सी में ऑटमन शिप्स ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। टर्की यानी ऑटमन एम्पायर के गैलीपोली शहर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आर्मी ने हमला कर दिया। इस आर्मी को एंजैक भी कहते हैं, पर इसे पूरी सफलता नहीं मिली। जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वार शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जर्मनी की बनाई गई सबमरीन्स ने अलाइड शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स को यू बोट्स भी कहा जाता था। अमेरिका एंटर्स इन वॉर। पहले तो जर्मनी अलाइड शिप्स पर ही अटैक करता था, लेकिन बाद में जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी ही एक बोट में मौत हो गई। इसलिए अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी वार को ज्वाइन किया, क्योंकि अमेरिका के बहुत से लोग इस अटैक में मारे गए थे। एंडिंग ऑफ वॉर। अब यूएसए अपने लगातार 10,000 सैनिक रोज ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था, और दूसरी ओर रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक गवर्नमेंट बनी फरवरी 1917 में। कुछ समय बाद अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई, जिसमें लेनिन नाम के एक नेता ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफ लड़ाई चल रही थी, यानी ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ खड़ा था, जिसके पास बहुत सारी सेना और रिसोर्सेज थे। अब अंत में अलाइड पावर्स की आर्मी ने हर तरफ से हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑटमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया, और 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी के युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा ली। अगले साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस फाइनल हुआ। इसके अकॉर्डिंग बहुत सी इसकी शर्तें थी, जिसमें जर्मनी को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी को बहुत सारा फ़ाइन देना पड़ा। जर्मनी बहुत सालों तक ये फ़ाइन ख़त्म नहीं कर पाया। अभी अभी 2010 में जर्मनी इस फ़ाइन को चुका पाया है, और बहुत सी कंट्रीज़ पे बहुत सारा कर्जा आ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। बहुत से एम्पायर्स ख़त्म हुए, जैसे जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑटमन एम्पायर। नंबर 2, बहुत से नए देश बने, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, यूगोस्लाविया और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम के अंडर आती थी। इसके अलावा पोलैंड, इंग्लैंड,
एस्टोनिया, लेटिविया, लिथुआनिया जैसी बहुत सी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई। नंबर 3, लड़ाई के दौरान 17 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 4, कई बीमारियां फैलने के बाद इससे 50 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 5, मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई देश उधार में चले गए। नंबर 7, जर्मन कॉलोनीज अब ब्रिटिश और फ्रांस की हो गई। नंबर 8, यूएसए इंटरनेशनल पावर बनने वाला था। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। भारत उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था, तो लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश की ओर से लड़े। लगभग 50,000 सैनिक मारे गए और इसके लिए ही इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। તો મિત્રો, આ પ્રમાણે 1414થી 1419ના સમયગાળા સુધી પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની ઘટના છે તે ઘટેલી હતી. ત્યાર પછી શરૂ થયું બીજું વિશ્વયુદ્ધ. તેની ઘટના છે એ આપણે જોઈએ અને ત્યાર પછી એનું એનિમેટેડ મૂવી છે તે જોઈએ. તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં ફરીથી વિશ્વ બે જૂથોમાં વહેંચાઈ ગયું. જેમ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની અંદર પણ વિશ્વ છે તે બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયેલું. જે મિત્ર રાષ્ટ્રોએ સંધિ કરેલી હતી તે બે ભાગમાં વિશ્વ છે તે વહેંચાઈ ગયેલું હતું. તે જ પ્રમાણે અહીં પણ ઘટના ઘટેલી કે વિશ્વ છે તે બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું. એક તરફ ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સની આગેવાનીવાળું મિત્ર રાષ્ટ્રોનું જૂથ હતું, જેમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સની આગેવાની હતી. બીજી બાજુ જર્મની, ઇટાલી, જાપાન જેવા ધરી રાષ્ટ્રોનું જૂથ હતું. બીજી તરફ ઓલા મિત્ર રાષ્ટ્રો ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ, જ્યારે અહીં ધરી રાષ્ટ્રોની અંદર જર્મની, ઇટાલી, જાપાન આ બધા રાષ્ટ્રો કે જેને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની અંદર ફાઇન્ડ દંડ છે તે ચૂકવવો પડ્યો હતો અને તે રાષ્ટ્રોએ એકબીજાની સાથે મિત્રતા કરીને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં છે તે સામેના જૂથમાં જોડાયેલા હતા. આ ઉપરાંત યુદ્ધખોર માનસ ધરાવતા બીજા કેટલાક પરિબળો તેમાં પ્રવેશ્યા. જાપાને હવાઈ ટાપુઓ પર્લ હાર્બર ખાતે આવેલા અમેરિકન નૌકાદળ પર આક્રમણ કર્યું. સૌથી પહેલાં જાપાને છે તે અમેરિકાના નૌકાદળ ઉપર, સમુદ્રની અંદર જે દળ કામ કરતું હોય નૌકાદળ, તેના ઉપર તેણે આક્રમણ કર્યું અને પરિણામે તટસ્થ નીતિ છોડી અને અમેરિકાએ વળતો હુમલો કર્યો. તે મિત્ર રાષ્ટ્રોના પક્ષે જોડાઈ ગયું. એટલે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સની સાથે છે તે અમેરિકા જોડાયું. મિત્ર રાષ્ટ્રોના પક્ષે છે તે અમેરિકા જોડાયું. પહેલાંથી એકેય પક્ષ નહોતું અમેરિકા, તટસ્થ હતું કે અમારે છે વિશ્વયુદ્ધની સાથે કોઈ પણ લેવા દેવા નથી અને પોતે એક પણ પક્ષ જોડાયેલું ન હતું. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાને જ્યારે અમેરિકા પર સામો હુમલો કર્યો એટલે અમેરિકા છે તે મિત્ર રાષ્ટ્ર તરફ જોડાયું અને અમેરિકાએ વળતો હુમલો કર્યો. તે મિત્ર રાષ્ટ્ર પક્ષે જોડાયો, તેથી મિત્ર રાષ્ટ્રની તાકાતમાં વધારો થયો. જ્યારે વિશ્વયુદ્ધ ઘમાસાણ ચાલતું હતું તેમાં જાપાનની તાકાતને રોકવા અમેરિકાએ જાપાનમાં હિરોશિમા અને નાગાસાકી એવા બે નગરો પર અણુબોમ્બ ફેંક્યા અને જાપાનના 1,24,000થી વધુ નાગરિકોનો ભોગ લેવાયો. બીજા વિશ્વયુદ્ધની આ સૌથી કરુણ અને મહત્વની ઘટના છે કે અમેરિકાએ જાપાનના બે શહેરો હિરોશિમા અને નાગાસાકી ઉપર અણુ અખતરો જે કર્યો અને એક સાથે જાપાનમાં 1,24,000થી વધુ નાગરિકોનો ભોગ લેવાયો. તેની તબાહી એટલી બધી હતી કે આજે પણ જાપાનના આ શહેરો તેનો ભોગ બનેલા છે અને તેનું પરિણામો છે તે ચૂકવી રહ્યા છે. કારણ કે હિરોશિમા અને નાગાસાકી ઉપર અણુબોમ્બ જે ફેંકવામાં આવેલા હતા તેના રેડિયેશન તેના જમીનની અંદર ઉતરી ગયેલા છે અને આજે પણ ત્યાંના લોકોને તેની આડઅસરો જોવા મળે છે. તો બીજા વિશ્વયુદ્ધની આ મહત્વની ઘટના હતી કે અમેરિકાએ જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી બે શહેરો પર અણુબોમ્બ ફેંક્યા અને 1,24,000થી વધુ નાગરિકોનો ભોગ લેવાયો, મૃત્યુ પામ્યા અને મહાવિનાશ સર્જાયો. પરિણામે જાપાને શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી કે જાપાને છે તે શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી કે ભાઈ અમારે આ યુદ્ધની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી અને દ્વિતીય મહાવિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો. આપણે જોઈએ આનું પણ એક એનિમેટેડ સરસ મૂવી છે, તે બીજા વિશ્વયુદ્ધની ઘટના વિશેનું.
તેના વિશે છે તે જોઈએ તો બીજા વિશ્વયુદ્ધનું મૂવી दुनिया के हर पहलू को बदल के रख दिया, जो इतिहास का एक कलंक है और खुद अपने आप में एक इतिहास है, जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया का हर इंसान उत्सुक रहता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। ग्लोबल या टोटल वॉर इसलिए क्योंकि इस विश्व युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि देश के आम आदमी भी शामिल थे। जब पहले वॉर होती थी तो सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन इस विश्व युद्ध में सामान्य जनता को भी टारगेट किया गया था। किसी भी देश ने अपने दुश्मन देशों में घुसकर आम जनता पर गोले बरसाए थे, उन पर बम फेंके थे और उन पर मिसाइलें दागी थी। इसलिए इस विश्व युद्ध में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिस पर जान का खतरा ना हो। इसी कारण इसे टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और इस युद्ध में दो मेन पावर थे। एक था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटाली, जापान, हंगेरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एलियंस पावर के नेशन थे, जिसमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड जैसे देश शामिल थे। यहाँ पर याद रहे कि इटली पहले विश्व युद्ध में एलियंस पावर में था, जबकि वह दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर में शामिल हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध में उस वक्त की पृथ्वी की जनसंख्या के 3% लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग घायल हुए थे और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। जैसे कि हमने हमारी आगे की 2 डॉक्यूमेंट्री में जाना कि हर एक घटना दूसरी एक घटना को अंजाम देती है। दूसरे विश्व युद्ध होने के पीछे भी कई घटनाएं कारणभूत थी। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण था खुद पहला विश्व युद्ध। अगर आपने हमारी पिछली 2 डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड वॉर 1 और बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखी तो बाद में आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं दूसरे विश्व युद्ध का। जैसे कि आगे हमने जाना, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से घुटनों पे आ गया था और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने विवादित वर्सल्स करार के जरिए जर्मन प्रजा की स्थिति बद से बदतर कर दी थी और जर्मन्स में रोष और आक्रोश पनपने लगा था। उन प्रजाजनों में से एक था एडोल्फ हिटलर, जिसने नाजी के जरिए जर्मनी की सत्ता हासिल की और दुश्मन देशों से बदला लेने का प्लान बनाया। हिटलर ने दुश्मन देशों के द्वारा हथियाए हुए जर्मन प्रदेशों को एक एक कर वापस ले लिया और आखिरकार जर्मनी का सबसे बड़ा भूभाग जो पोलैंड में था उस पर भी आक्रमण कर उसे ले लिया गया। मगर हिटलर इतने से संतोष मानने वाला नहीं था और अब वह दुश्मन देशों को अपने ताबे में करना चाहता था, जिसके लिए उसने पोलैंड देश पर हमला कर दिया। दिन था 1 सितंबर 1939, समय सुबह के 4:45 और ये था दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ। 1 सितंबर की सुबह 4:45 पर जर्मनी ने जिस महायुद्ध का आरंभ किया उसके कुछ ही घंटों में लगभग 15 लाख जर्मन नाजी सैनिक पोलैंड के अंदर घुस गए और महज 1 महीना होते होते तो पूरे पोलैंड देश को जीत लिया। पोलैंड पे हमला होने के हालात में मदद का वायदा देने वाले फ्रांस और ब्रिटेन भी इन हालात में कुछ न कर सके। पोलैंड को जीतने के बाद लगभग 6 महीने तक हिटलर शांत रहा। उसने कोई भी प्रतिक्रिया की नहीं, लेकिन उसका अगला टारगेट फ्रांस और ब्रिटेन थे, क्योंकि यही वो देश थे जो जर्मनी की दयनीय स्थिति के लिए जवाबदार थे और वर्सल्स करार के नायक। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर जर्मन सत्ता को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था और वैसे ही सोच रखने वाला एक और तानाशाह इटली में पैदा हो गया था, जो था मुसोलिनी। मुसोलिनी इटालियन सत्ता फिर से यूरोप में खड़ी करना चाहता था और रोमन राज जैसी हुकूमत वापस लाना चाहता था। वहाँ तीसरी ओर पूर्व में जापान लड़ रहा था। जापान एशिया में अपनी हुकूमत बनाना चाहता था और पूर्व तथा दक्षिण एशिया के देशों को जीतकर उन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। तो इस तरह साम्राज्यवादी नीतियों को ध्यान में रख ये 3 देश विश्व युद्ध लड़ रहे थे। अब हिटलर बहुत ज्यादा ही महत्वाकांक्षी बन चुका था। वो सभी देशों पर जर्मन राज लाना चाहता था। फ्रांस और ब्रिटेन पे हमला करने के लिए उसे और ज्यादा शस्त्रों की और डिफेंस पावर की जरूरत थी, इसलिए उसने फिलहाल वो हमला स्थगित रखा और उत्तरी यूरोप के एक स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 1940 के दिन लगभग 15,000 सैनिक, 1,000 फाइटर प्लेन और 28 सबमरीन्स को भेजकर नॉर्वे को जीत लिया और नॉर्वे और जर्मनी के बीच पड़ने वाले देश डेनमार्क को भी अपने ताबे में कर लिया।
इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों में तो नीदरलैंड, लक्सेमबर्ग और बेल्जियम तीनों देशों पर बारी बारी हमला कर जर्मनी में विलीन कर दिया। 1940 का जून महीना आते आते हिटलर को लगा कि अब उसके पास डिफेंस पावर के लिए उत्पादित शस्त्र पर्याप्त मात्रा में जमा हो गए हैं। इसलिए 5 जून 1940 को हिटलर ने लगभग 15 लाख नाजी सैनिकों को भेजकर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। उस समय फ्रांस के पास 8 लाख सैनिक थे, लेकिन उसके सामने 15 लाख नाजी सैनिक, 2000 टैंक्स और 1500 फाइटर प्लेन थे, जिसको उस वक्त हरा पाना फ्रांस के बस में नहीं था। और महज 15 दिन होते होते तो फ्रांस का काम तमाम कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो दिन आज भी हिटलर भूला नहीं था। यहाँ पर इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। हिटलर ने फ्रांस के वही कैंपिंग के जंगल में वही ट्रेन बुलवाई जिसमें लगभग 21 साल पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन सरकार से शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए थे। हिटलर ने आज इतने सालों बाद फिर से कैंपिंग के जंगलों में ट्रेन में बैठकर फ्रांस को शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए। अब स्थिति ये थी कि जर्मन सेना लगभग पूरे यूरोप को अपने ताबे में ले चुकी थी। बस अब सिर्फ एक ही देश बाकी था जो उनके सामने झुका नहीं था, वो था द ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा देश है, इसलिए अब तक वो अभेद रह गया। लेकिन 1940 में हिटलर ने समुद्री मार्ग से ब्रिटेन पर हमला करने की ठान ली, लेकिन उसके इस विचार में बाधा रूप बना उसका सेना अध्यक्ष। हिटलर के सेना अध्यक्ष ने उस वक्त ये कहकर युद्ध को टाल दिया कि ब्रिटेन की वायुसेना बहुत मजबूत है और वो लोग हम पे समुद्र में हवाई हमला कर सकते हैं। इसलिए हिटलर ने कुछ समय प्रतीक्षा की और अपने वायुसेना को और मजबूत बना लिया, ताकि जब वो ब्रिटेन पर हमला करे तो जर्मन वायुसेना उस पर काउंटर अटैक कर सके। और कुछ ही महीनों बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटेन के 1000 और जर्मनी के लगभग 1800 फाइटर प्लेन निस्तनाबूद हो गए। महीनों तक चले बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद हिटलर का धैर्य टूट गया। हालांकि आधे से ज्यादा यूरोप पर जर्मनी की हुकूमत थी और कुछ समय और हिटलर ये युद्ध जारी रखता तो ब्रिटेन को आज नहीं तो कल हारना ही पड़ता। लेकिन कूटनीति में हिटलर इतना अच्छा नहीं था जितना वो राजनीति में था, और वो न करने वाली 3 बड़ी गलतियां कर बैठा। उसकी सबसे बड़ी एक भूल तो ये थी कि उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध को स्थगित कर दिया और ब्रिटेन को बाद में हराने की सोचने के बाद वो फिलहाल यूरोप के अन्य देशों पर हुकूमत करने की सोचने लगा। हिटलर की दूसरी और सबसे बड़ी अक्षम्य गलती ये थी कि उसने रशिया के साथ बिना कोई कारण ही युद्ध छेड़ दिया। रशिया के साथ युद्ध करने के लिए हिटलर ने 30 लाख सैनिक, 7000 टैंक्स और 4000 फाइटर प्लेन रवाना किए। उस समय जर्मन नाजी सैनिकों ने रशिया में घुस की, लेकिन बाद में वो रशियन सैनिकों के सामने और रशिया के ठंड मौसम के सामने नहीं टिक पाए और लगभग 9 लाख नाजी सैनिक मारे गए। और रशियन सैनिक जर्मन नाजी सैनिकों को खदेड़ते हुए जर्मनी की बॉर्डर तक आ गए। हिटलर ने तीसरी भूल ये कर दी कि उसने बिना कोई वजह अमेरिका से युद्ध डिक्लेयर कर दिया, जबकि विवादित वर्सेल्स करार के वक्त और उससे पहले अमेरिका का रवैया जर्मनी के लिए सॉफ्ट था और अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। उसके 4 ही दिन बाद हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर ने शायद ये सोचा होगा कि अग्नि एशिया में जापान ब्रिटेन के सामने लड़ रहा है, जो जर्मनी का दुश्मन था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। और अब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया, इस वजह से दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ। शायद इन समीकरणों के चलते हड़बड़ी में हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके परिणाम जर्मनी और हिटलर के लिए बहुत घातक साबित हुए। 6 जून 1944 के दिन अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे मित्र राष्ट्रों की सेना यूरोप में घुस गई और जर्मनी पर हमला कर दिया, जिसमें कई नाजी सैनिक मारे गए। और वर्साइस करार में हुए अत्याचार का बदला लेने वाला जर्मनी फिर से घुटनों पर आ गया। इधर 1943 में जर्मनी का खात्मा बुलाने से पहले ही इटली को अपने कब्जे में कर लिया और मुसोलिनी को हिरासत में ले लिया। महीनों तक चले संग्राम में जर्मनी की पीछेहट हुई थी, क्योंकि एक और पश्चिम की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मनी पर हल्ला बोल रही थी,
जबकि दूसरी ओर पूर्व की तरफ रशिया की सेना राजधानी बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। इन हालात में अब जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत निश्चित था। हिटलर के अपने अंतिम दिन बर्लिन के सचिवालय के नीचे बने फ्यूरर बंकर कहे जाने वाले अपने आवास स्थान में गुजारे। फ्यूरर नाम की ये बंकर थी तो बहुत मजबूत, लेकिन बर्लिन पर हो रहे तोप के गोलों ने बंकर की नींव और उसकी छत को हिला दिया था। हिटलर को अब अपना अंत करीब लग रहा था। उसने कुछ सर्वोच्च नाजी अफसरों को और अपने करीबी लोगों को बुलाया, जिनमें उस वक्त उसके साथ 26 लश्करी अफसर और 31 चौकीदार थे। रशियन का जो रिपोर्ट दस्तावेजों में दर्ज है, उस रिपोर्ट के अनुसार हिटलर ने अपने करीबी लोगों से कहा कि मुझे किसी भी हाल में दुश्मनों के हाथ पकड़े नहीं जाना है। वो एक एक अफसरों को मिला, लेकिन ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की। अब सब समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे दिन थी तारीख 30 अप्रैल 1945। हिटलर के जीवन का ये आखिरी दिन था। दोपहर को ईवा ब्राउन के साथ उसने लंच किया। लगभग 2 बजे के बाद भोजन समाप्त करते हुए वो दोनों एक कमरे में गए, जिसके बाहर एक चौकीदार स्टैंड अप पोजीशन में पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद बंकर के उस कमरे में ईवा ब्राउन ने साइनाइड की गोली खा ली और हिटलर ने वॉल्थर ब्रांड की अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। और इसी के साथ तानाशाह हिटलर के चैप्टर का अंत हो गया। हालांकि हिटलर की मौत के बारे में ये सर्वमान्य रिपोर्ट के अनुसार घटित हुई घटनाओं का ब्यौरा है, लेकिन हिटलर की मौत को आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है और उसके विषय में कई अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग घटनाओं का जिक्र करती है। सच्चाई आखिर जो भी हो, लेकिन उस वक्त हिटलर का अंत हो गया था और जर्मनी की पराजय। इधर हिटलर की मौत और जर्मनी की हार के बाद यूरोप में तो लगभग दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा था। जापान ने मित्र देशों के नाक में दम कर रखा था। उसने अमेरिका का भी काफी नुकसान किया और कई अमेरिकन तथा चाइनीज टापुओं को जीत लिया। जापान उस वक्त इतना फॉर्म में चल रहा था कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ पर मित्र देश उसे हराकर किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 2 दिन एक एक करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया, जिसमें हजारों जापानी निर्दोष लोग मारे गए और उसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका कई और तरीकों से भी जापान पे हमला कर उसे कंट्रोल में कर सकता था, तो आखिर इतने भयानक एटॉमिक हमला करने की जरूरत क्या थी? इसके ऊपर अमेरिका की भी अपनी सफाई है, अपने जवाब है। खैर, दूसरे विश्व युद्ध का अंत चाहे जैसे भी हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। इतने खतरनाक युद्धों के बाद आखिरकार दुनिया को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर का ठंडा विग्रह शुरू हुआ। इस कोल्ड वॉर में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुखद बात यह रही कि 1991 आते आते कोल्ड वॉर खत्म हो गया और दुनिया ने चैन की सांस ली। परंतु इस कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और रशिया ने हजारों न्यूक्लियर वेपन्स खड़े कर दिए और न्यूक्लियर से भी घातक हथियारों का उत्पादन किया। और न सिर्फ इन दो देशों ने बल्कि कई और देशों ने भी अपने आप को एडवांस और वेपनाइज कर दिया। आगे हम फिर हाजिर होंगे तीसरे विश्व युद्ध की सांकेतिक। તો મિત્રો, આ પ્રકારની હતી બીજા વિશ્વયુદ્ધની ઘટના। હંમેશા યુદ્ધ છે તે વિનાશ જ વરે છે। કોઈ પણ એક પક્ષની હાર થાય છે અને બીજા પક્ષની જીત થતી હોય છે, પરંતુ બંને પક્ષનો વિનાશ તો આમાં હોય જ છે। અને બીજું વિશ્વયુદ્ધ આટલું ભયાનક રીતે થયું હોવા છતાં તેમાં પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં નુકસાની વહોરી પડી હતી, પરંતુ વિશ્વના લોકોને કંઈ પણ પ્રાપ્ત થઈ શક્યું નહીં। હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા વિશ્વયુદ્ધના પરિણામો, તાત્કાલિક પરિણામો, તેની અસર કેવા પ્રકારની જોવા મળી અને કોલ્ડ વોર એટલે કે ઠંડુ યુદ્ધ તેના વિશેની ચર્ચા છે તે કરીશું। આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આજના લેક્ચરનું તમારું હોમવર્ક છે, જેમાં તમારે ટૂંક નોંધ લખવાની છે બીજા વિશ્વયુદ્ધની રૂપરેખા। ત્યાં સુધી રાખીએ છીએ। થેન્ક યુ।